میں اس وقت ماربل فیکٹری کیری فیکٹری کے بالکل سامنے موجود ہوں. یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 30-35 سے زائد جو ماربل فیکٹریاں ہیں وہاں پہ سی ڈی اے انتظامیہ جو ہے انہوں نے غیر قانونی طور پہ ان کا مال توڑ دیا ہے. گو کہ زمین سی ڈی اے کی ہے. یہاں کے تاجر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ سی ڈی اے کی ہے, اپنی زمین باگزار کروا سکتے ہیں, لیکن ہم جو مال صبح رکھتے ہیں شام کو اٹھا لیتے ہیں. اور سی ڈی اے ملازمین کے حوالے سے یہ بھی خصوصی طور پہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ ان سے پیسے مانگتے ہیں, بتا مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جہاں پہ موجود ہے ان کے پاس چلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا وہ کون سے ایسے عناصر ہیں, کون سے ایسے لوگ ہیں جو حق حلال کے کاروبار میں راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں. میرے ساتھ شاہ جی آپ آگے آئیں ذرا. میرے ساتھ اس وقت تاجروں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں وہ معصوم بچے موجود ہیں جن کے گھروں کے چولہے بجھ چکے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ان کی انتظامیہ کے لوگ کدھر کھڑے ہیں؟ یہ سیکٹری صاحب, ماربل ایسوسی ایشن کے سیکٹری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ بتائیں جی کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ ظالمانہ توڑ پھوڑ کا جواب, پرامن احتجاج, معاشی قتل, عارضی سامان تھا, اس طرح کے آپ ظالمانہ توڑ پھوڑ نامنظور, بالکل نامنظور. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہاں پہ یہ تمام معاملات لے کے کھڑے ہیں. کیا وقوع ہوا ہے, کیوں یہ سراپا احتجاج ہے؟ چھوڑ دیں سر. ایسے ہے کہ یہ تو عرصہ دراز سے 30-40 سال ہو گئے ہیں. یہ زمین ابھی تک سی ڈی اے کلیئر بھی نہیں کرا سکا کہ اس کی ہے بھی ہے کہ نہیں. انہوں نے اپنی صرف لین دین کے لیے سارا معاملہ چلا ہے اور انہوں نے لوگوں کا معاشی قتل کیا ہے. یہ ہمارے بزنس مین تھے, پرامن لوگ تھے, سی ڈی اے کو ٹیکسز دے رہے ہیں, دیگر ٹیکسز دے رہے ہیں, انکم ٹیکس دے رہے ہیں, سیل ٹیکس دے رہے ہیں, گورنمنٹ کو ریونیو دے رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا آپ ان سے نیگوسیشن کریں, متعلقہ فارم موجود ہے, ان سے آپ بات چیت کریں. اگر وہ کارروائی نہیں ہوتی پھر آپ نقصان نہیں کر سکتے, قانوناً آپ نقصان نہیں اٹھا سکتے ہیں, آپ جرمانہ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یکدم آگے آپ جو نا سارا ان کا لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان کر کے چلے گئے. یہ چیئرمین صاحب کی بدماشی ہے. آپ اس ایسوسی ایشن کے آپ سیکٹری بھی ہیں, اور مجھے یہ بتائیں کہ سامان کیوں توڑا گیا؟ کیا آپ سی ڈی اے سے مزاحمت کرتے ہیں؟ سر بہت غیر قانونی کام کیا گیا ہے, صرف اپنی جیب بھرنے کے لیے سارا عمل کیا گیا ہے. یہ پرامن طور پر بھی ہو سکتا تھا, بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر مذاکرات سے ہر معاملہ حل ہو جاتا ہے. ہم ہمیشہ گورنمنٹ سے, دیگر محکمے بھی ہیں, سی ڈی ایس سے بھی ہمارے معاملات چلتے رہے, لیکن ایسے کبھی نہیں ہوا. جو اس مرتبہ چیئرمین صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا جی سب کچھ ڈیمالش کر دو. قانون میں تو یہ نہیں ہے. ان کا معاشی قتل جو ان کو کروڑوں روپے کا نقصان کیا گیا کون پورا کرے گا؟ یہ بہت غیر قانونی عمل ہوا ہے اور اس کے اوپر جتنی مذمت کیجیے کامر لوگوں کا نقصان پورا کرنا چاہیے. دیگر یہاں پہ دوست موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آئی صاحب آپ ادھر آگے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ نقصان آپ کا ہوا, اس طرح دیگر ماربل کے جو ہمارے دوست ہیں ان کا نقصان ہوا. تو مجھے یہ بتائیں کس قدر نقصان ہوا اور کتنے دکانداروں کا نقصان ہوا ہے؟ سر ہمارا نقصان اتنا ہو چکا ہے کہ ہم 20 سال پیچھے چلے گئے ہیں. یہ صرف سی ڈی او والے نہیں ہمارے اوپر پریشر مسلط کیا اور ہمیں بتایا ہے کہ ہم کریں گے. ہم نے بہت مال اٹھا کے پیچھے کر لیا جو ہم ایک دن میں اٹھا کے پیچھے نہیں کر سکتے. ہماری ڈیل چل رہی تھی, اب 5-6 لوگ ہم گواہ ہیں اس چیز کے کہ ہماری ڈیل چل رہی تھی, ہماری ڈیل تھی ان کے ساتھ. لیکن کچھ دوست ہمارے ایسے تھے جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے, گاڑیوں کے کرائے ہم نے دیے, یہاں سے مال اٹھائے ان کے, اور بالکل مجبور بیٹیاں سر کے اوپر پڑی ہوئی ہیں, جوان بیٹیاں پڑی ہوئی ہیں, شادی کروانی ہیں, اور بہت سے مسائل ہیں جو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. ان مسائلوں کی بھی آپ کو بتائیں تو ہم آپ ہمیں گھر سے لا کے دیں. ہم نے ان کو محنت کی, انہوں نے کہا ہمارے پاؤں پر جو آپ نے 16 ہزار روپیہ نہیں دیا ہے, تو انہوں نے ہمارا آپریشن کیا ہے. آپریشن کرنے کے باوجود ان کو منتیں کرتے رہے, زاریہ کرتے رہے, یہ کہتے رہے ہمارے پاؤں میں پڑو, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ہم نے ان کے آگے قرآن کے واسطے ڈالے ہمارا نقصان نہ کرو, نبی کے واسطے ڈالے, انہوں نے ہمارا نقصان کیا. ہمیں 5 گھنٹے مانگے ہیں اور انہوں نے 5 گھنٹے بھی ہمیں نہیں دیا. انہوں نے جان بوجھ کے ہمارا مال توڑا ہے اپنی گنڈا گردی کی وجہ سے. اچھا آپ لین دین کی بات کرتے ہیں, کون سے وہ ایسے انسپیکٹر ہیں, آپ نام بتا سکتے ہیں؟ سر موقع آئے عدالت میں جاؤں, میں سب کے نام بتاؤں گا باقاعدہ. الگ کے اس وقت آپ کو عدالتیں بھی دیکھ رہے ہیں, جج بھی دیکھ رہے ہیں, الف کے طور کے اوپر میں سب کے نام بتاؤں گا, الف اٹھاؤں گا, الف کے طور سارے کا نام بتاؤں گا. تمام ثبوت موجود ہیں؟ ثبوت بھی موجود ہے ہمارے پاس. میڈیا کو بتائیں نا. ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہے, ہمارے پاس ریکارڈنگ بھی ان کی پڑی ہوئی ہے, ان کی ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے. نام ہم بتائیں گے. میں اپنی یونین کے صدر صاحب سے پتہ کر کے, ہماری یونین ہے, ہمارے صدر صاحب ہے, وہ ابھی بھی میں نے ان سے کچھ پوچھا نہیں ہے, میں غلط بول گیا, کچا بول گیا, جو کچھ بھی بولا ہے, لیکن ہمیں 20 سال تک مقروض کر. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. آپ
देखें नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं, मेरे ज़ाहिर सी बात है मेरे इस प्रोग्राम को बहुत ज़िम्मेदार बंदे भी देख रहे हैं। इसमें CDA चेयरमैन जो हैं वो मैंगल साहब, वो बड़े ज़िम्मेदार है, गैर ज़िम्मेदार नहीं है। उन्होंने रावलपिंडी में बहुत अच्छे काम किए। अब CDA के इस्लामाबाद में मौजूद है। इन लोगों की थोड़ी सी बात सुने कि इतना नुकसान होने के बावजूद फिर भी ये लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को देख सकते हैं। ये एक छोटी सी मासूम सी बेटी हमारे पास खड़ी है। इन बच्चों का क्या कसूर है? अब मैंने देखा कि ये तमाम के तमाम लोग यहाँ पे सरापे एहतजाज है। मेरे एक और दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, आप जरा सामने आए, जरा आप मुझे बताएं जी कि इतना बड़ा नुकसान हो गया जी जी, तो इसके बावजूद आप लोगों ने एक पूरा मन मुजाहरा भी किया। जी जी। तो CDA से आपकी क्या उम्मीदें वाबस्ता है? CDA चेयरमैन से आपकी क्या उम्मीदें वाबस्ता है? वो नहीं आए। ये काम ये हुआ, आज से 3 दिन पहले उन्होंने नोटिस दिया था। उन जो डिमांड रखी थी वो डिमांड हम नहीं पूरी कर सकते। डिमांड क्या थी? नोटिस डिमांड उनकी बहुत ज्यादा थी। पैसों की थी? यहाँ पे जो आदमी 10 लाख कोई पैसों की हाँ, ये थी। बात। यहाँ पे जो आदमी 10 लाख का कारोबार करता है, मेरी बात सुने, वो महीने का 30,000 रुपया कमाता है। वो इनको दे या अपने बच्चों को पाला है। यहाँ पे कोई पाउडर का काम तो नहीं है, ये खरीदने वाली बात है। यहाँ पे जो 50 लाख रुपया जमा करके वो कारोबार करता हो, महीने का 50,000 रुपया कमाता है, उसका लाख रुपया खर्च होता है इस महंगाई के दौर में। वो इनको दे या अपने बच्चों का पेट पाले। अपने बच्चों का पेट पाले। मेरी बात जरा मुकम्मल कर। फिर अजमल मार्केट पे जब ये पहुंचे, हमने उनकी मिन्नतें की, पाँव पकड़े, भाई 1 घंटे का हमें टाइम दे दो, 2 घंटे का टाइम दे, हम माल उठाते हैं। 1-1 लाख रुपया लगा के माल लोगों ने अंदर दुकानों के अंदर रखा है। फिर इन लोगों का क्या गलती है? उनकी बात कोई नहीं मानी तो हम जिम्मेदार हैं। हमारे को जेल ले जाते, थाने ले जाते, पर्चे काट लेते, लेकिन माल तोड़ना नामुमकिन था। ये समझ आ गया? शाहजहान मैंगल साहब में कोई जिन्होंने ये भी कहा है, कुछ CDA से तलक रखते हैं, शायद ये उनको जानते नहीं है। मेरे सामने कहा, मैं अल्फान ये कह सकता हूँ, मेरे पाँव में साथ रखे तब भी नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं शाह जी, मेरे साथ आए जरा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे मौजूद हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जाके विजिट भी करवाता हूँ कि आप देखिए कि किस अंदाज के साथ इन्होंने मार्बल को तोड़ा गया। मैं आपको थोड़ा सा जाके दिखाता हूँ सारा। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये 30 के करीब सारी वहाँ तक आगे तक मार्बल फैक्ट्री है। वो मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि सारी मार्बल फैक्ट्री है, और मार्बल को इन्होंने आके शदीद अंदाज में तोड़ फोड़ की और मार्बल तोड़ दिए। चलें, मैं दोबारा वो बात करता हूँ कि CDA जो है वो अपना काम करे, अपनी ज़मीन बागुज़ार करवानी चाहिए। और यहाँ के जितने भी ताजर हैं वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि ज़मीन CDA अपनी बागुज़ार करवाए, लेकिन लाखों करोड़ों का जो माल तोड़ दिया गया उस हवाले से ये शदीद परेशान है। इनका ये कहना है कि रिस्क हलाल और हमारे बच्चों के मुंह से रिस्क रोजी का जो नवाला छीन लिया गया है, इसको किसी भी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। मेरे एक दोस्त यहाँ पे मौजूद है। आप ये बताएं जी कि अभी आप यहाँ पे नारे भी माशाल्लाह लगवाए, तो आप ये कह रहे थे कि रोजी रोटी का जो नवाला है आपके बच्चों के मुंह से छीन लिया गया है, उसकी मजम्मत भी करते हैं, वो किसी सूरत में कबूल नहीं है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, बात तो ये है कि ये तो असल में सियासी मसाइल भी नहीं था, ताजरों का मसाइल थी, और ताजरों पे पाकिस्तान आबाद है। अब अगर हम ताजर रेड की हड्डी हैं, ताजर रेड की हड्डी है, टैक्स सही तरीके से देते हैं, हर चीज़ पे पाकिस्तान का साथ दे रहे, इतना जुल्म होने के बावजूद भी वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे। ये बात तो सच है कि ये ज़मीन CDA की है, ये तो बात सच है। जी हाँ, CDA की ज़मीन है। हमारा मार्बल जो है ये नहीं है कि पक्के लग गए जनाब, ये कब्जा ग्रुप हो गया जनाब, सुबह आ गया, 1 दिन 2 दिन में बिक जाते चला जाता है। उसी से हमारे बच्चों की रोटी खाने वाला शुरू हो जाते हैं। कैसे साबित कर सकते हैं कि आप कब्जा ग्रुप नहीं है? आप इस CDA की ज़मीन पे कब्जा किया है जनाब। हमारा CDA की ज़मीन, ये तो सारा कुछ अब भी आपको बता रहे हैं कि हर सब चीज़ें आर्जी है। जब आपके नुमाइंदे आगे उस वक्त भी गाड़ियाँ लग गए थे माल उठाने के लिए, तो कम से कम जब माल उठाने के लिए थे 2 मुलाजिम वो रख लेते कि वाकई यार बंदे माल उठा रहे, तो हमें इसकी नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे एक मुलाजिमीन भाई। पैसे तो नहीं देते हैं आप? नहीं, पैसे तो हमने नहीं दिए। इस दफा को पैसों की डिमांड की थी? पैसों का डिमांड देना मेरे सामने तो नहीं है, क्योंकि मैं तो ऊपर वाले मार्केट के हूँ। चले, मैं हाजी अब्दुल्ला साहब के पास जाता हूँ। आज साहब के पास मौजूद हूँ। भाई साहब, आप ये बताएं कि आप एक जिम्मेदार हैं यहाँ के मार्बल एसोसिएशन के, आप जिम्मेदार हैं, ठीक है? तो मुझे आप ये बताएं कि इतना बड़ा आपका नुकसान हो गया, जिसकी जो आपने एस्टीमेट लगाया तो ये तकरीबन 3-4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ से ऊपर है। 5 करोड़ से ऊपर का नुकसान आपका हो गया। तो जो गरीब है, जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, क्या बनेगा? उनके घरों के हालात क्या हो चुके हैं? हमारे पास भाई ऐसे भी दुकानदार है जिसके टोटल सरमाया इतना था, जो एक ही 10 से 15 मिनट में टोटल वो उसने डोजर के नीचे आ गया और सड़क पे, और वो दुकानदार भी ऐसे है कि जिसके
दुकान अगर उसको किराए पे मिली है तो वो किसी वजह से मिली है, किसी रिश्तेदारी की वजह से मिली है, वरना उसको बेचारा दुकान लेना। अच्छा, ये हमारा सिर्फ ये नहीं कि 30 दुकानों का नुकसान हुआ है, 30 दुकानों के साथ हमारे अंदर 30 फैक्ट्री है, 30 फैक्ट्रियों में कम से कम एक फैक्ट्री में 10-10 लेबर है, 300 हमारे खानदान उधर डिस्टर्ब हो रहे हैं। अभी मैंने छोटे छोटे बच्चों को रोते हुए देखा, उनकी आंखों में आंसू देखे हैं। इसमें शक नहीं है, जो हमारे आज जुमरात हमारा हफ्तावारी होता है, लेबर ठेके पे होते हैं, आज हम उसको देने की पोजीशन में नहीं है, वो घर में क्या लेकर जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं आई साहब कि फर्दर इस वक्त सीडीए इंतजामिया में सुन रही है और इस वक्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद नूरुल अमीन मैंगल साहब, जिनकी एक अपनी अच्छी शनाख्त मौजूद है, इन लोगों का ये कहना है कि हमसे अपनी सीडीए ज़मीन ज़रूर वागुज़ार करें, हम उसके रास्ते में रुकावट नहीं है, लेकिन इसका तो एक्शन आपको लेना चाहिए कि सीडीए के अमले के अगर कुछ लोग इनसे पैसे लेने के लिए, बता मांगने के लिए आए हैं, उसकी पादाश में या 2-3-4 दुकानदार जो गरीब थे वो पैसे नहीं दे सके, उसकी पादाश में आगे तमाम दुकानों की तोड़ फोड़ कर दी। और ताजिरों का मजीद ये भी कहना है कि कुछ दुकानदारों को छोड़ भी दिया गया, कुछ दुकानदारों को छोड़ा है। वैसे वो इस तरह के कुछ दुकानदार एक दो के वो क्या, लेकिन ये उसके ऊपर हम ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, चलो छोड़ दे, वो हमारी बिरादरी का अल्हम्दुलिल्लाह, चलो शुक्र है कि उसकी बचत हो गई है, लेकिन जो जिसका नुकसान हुआ है, हमारा मुतालबा यही नहीं है। हम आज भी कहते हैं अगर पॉसिबल हो एक किसी जो मार्बल का उठाने का और शिफ्टिंग का तरीका जानते हो उससे पूछ ले, जितनी देर में हम मतलब एक कम से कम देर में उठाना मुमकिन हो हम उठाने को तैयार है, लेकिन हमें चलो मैं अगर सीडीए को कोई इशू है हमें चालान कर जाते हैं, हमें गिरफ्तार कर लेते हैं, हमारी दुकानें सील कर जाती, लेकिन हमारा मार्बल तोड़ना किसी को हक नहीं पहुंचता है। ये ना एक ट्रक मार्बल नजर आएगा, लेकिन एक ट्रक किराए समेत 25 लाख रुपए कराची खुजार से पहुंच जाता है। भाई साहब मुझे बताएं, अभी आपने एक अलामती हड़ताल की, आपने आईजेपी रोड ब्लॉक किया और आगे कोई लाए अमल फर्दर सीडीए की अगर इंतजामिया आपसे रब्ता नहीं करती, कोई फर्दर कोई ऐसा लाए अमल आपके है कि वो आप करेंगे? हमारा तो फिलहाल यही है कि हम अपने एहतजाज जो है ना ये निचली सतह पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ताकि हमारे पास कोई मुनासिब जो तरीका वो रख ले। हम किसी की जमीन पे काबिज नहीं है। प्रेस क्लब जाने की बात कर रहे थे आप? प्रेस क्लब के लिए कल का हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम है, कल शायद नमाज के बाद ही चले जाए, कल जुमा, क्योंकि जुमा हमारा लेबर का छुट्टी होता है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि उसकी मुश्किलात में इजाफा न हो, तो हो सकता है कल के लिए इंशाल्लाह हम प्रेस क्लब के भी मुश्किलात के बावजूद ये सारे लोग खड़े हैं, पाकिस्तान का नारा हमें लोगों से लगा रहे थे, पाकिस्तान पाकिस्तान हाजी साहब आप कुछ बताना चाह रहे हैं, काफी देर से आप कुछ नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम काला या रसूलल्लाह कहने वाले हैं, ठीक है, मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफर नहीं है। इन्होंने हमारे साथ वो मसला किया कि जो काफर भी नहीं करते, इंडिया के जो हैं वो भी इतना जुल्म नहीं करते जितना इन्होंने जुल्म किया है। मेरा एक भतीजा है समझा मार्बल वाला, उसका पाँव टूटा, फ्रैक्चर हुआ है, उसके पाँव टूटा हुआ, प्लस्तर चढ़ा हुआ था, तो इन्होंने कहा है कि जनाब इसकी दूसरी लात भी मिन्नत कर समाज कर रहा था तो रो रहा था, तो उसने कहा कि दूसरी टांग भी तोड़ो। ये कुछ तरीकाकार, ये इंसानियत है। किसने कहा दूसरी टांग तोड़ो? ये सीडीए का चेयरमैन था, उसके शाहजहान था, शाहजहान मैंगल, ठीक है, मैंगल सीडीए का अफसर था जो भी था। फिर उन्होंने कहा कि ये माल डालो हमारे किसी काम आ जाए। मैंने अपने कानों से सुना है, उसने मेरे सामने आया, मैं रूबरू बात करूंगा। तो मेरा एक कजन है, उसके 4 ट्रक के 3 ट्रक भर के यहाँ से ले गए हैं, ठीक है। ये कोई इंसानियत नहीं है, ये कुछ तरीकाकार नहीं है। एक गुर्ज वाला है, उसके पैप उठा के ले गए हैं, ये कुछ तरीकाकार तो नहीं है। ये डकैती की है उन्होंने, इसको डकैती कहते हैं, गुंडा कर दिया, बदमाशी है। वैसे इस मुल्क में डकैत बहुत ज्यादा हो चुके हैं, चोर बहुत ज्यादा हो चुके हैं, दुकानें आज नमाज लूटती हैं। सीडीए इनके पास जाओ, गंज मंडी वाले के पास ये पर्चा नहीं काटते, ये शमस थाना लगता है जी, शमस वाले कहते हैं ये गंज मंडी लगता है, गंज मंडी वाले कहते हैं जी थाना गंज मंडी लगता है, वो सब्जी मंडी बेचते हैं। एक तो अवाम जो है वो आज दंड डकैती होती हैं, आज दंड डकैती होती हैं। नचने वाला मार्बल भी हुई है, गुलाम मुस्तफा भी हुई है, वो कैमरे के साथ सारा कुछ सामान उठा के ले गए उसका, ठीक है जी। आपने बात सुनी इंतजामिया की जानिब से, इन्होंने कहा कि हमारा बहुत सारा माल जो है सीडीए ने चोरी कर लिया है। ये कौम जो है ये महंगाई की मारी है और महंगाई की चक्की में शदीद तरीके से ये कौम पिस चुकी है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं उनके मुंह से रोजी रोटी का नवाला छीन लिया गया है। तो मुझे बताया जाए कि इस संगीन दौर में ये गरीब लोग या इनके छोटे छोटे बच्चे या घरों में जो बैठी खवातीन हैं या ये जो बड़े बड़े ताजर यहाँ पे मौजूद है जो खड़े फिर भी लुटने के बावजूद
پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو پاکستان زندہ باد کا نعرہ پایا تکمیل تک کب پہنچے گا، ان کا احساس کب کیا جائے گا؟ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ سی ڈی اے کی زمین اللہ سی ڈی اے کو مبارک کرے، لیکن ہمارے مال کو توڑنا سریحاً ناجائز ہے، جو غیر قانونی اقدام ہے۔ کروڑوں کا 5-5.5 کروڑ کا جو نقصان ہوا، اس کا ذمہ دار کون بنے گا؟ یہ سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔